Okay, so good evening all. Let me start today's session. Today we are discussing, let me start today's topic. So myself Professor Hitesh. So first of all, let me introduce you what is GATE examination. Okay, so GATE examination means Graduate Aptitude Test in Engineering. Okay, the total number of questions in the exam are the 65 questions. The marks is 100 marks. Okay, and total duration is 3 hours. Am I clear? The total number of question is 65, total marks is 100, and total duration is 3 hours. Okay, so what we are discussing today is engineering mathematics. Okay, so engineering mathematics, you can say 15% marks. 15% marks is from the engineering mathematics. Okay, so what are the topics that we will discuss? Okay, so today we will start with, yes, so engineering mathematics is our topic today. Okay, so we will be having general aptitude, that is also 15% marks. So only engineering mathematics and general aptitude can give you 30% marks. Okay, and around 30% is required to get the GATE score card. Okay, अगर आपको GATE का स्कोर कार्ड चाहिए so आपको एटलीस्ट 30% मार्क्स तो चाहिए ही सही. Okay, and other 70% is belongs to technical topics. Understood? So अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? We are starting engineering mathematics. So उसका फर्स्ट टॉपिक we are starting is linear algebra. Okay, so first write it down. ये थोड़ा सा लिख लीजिए. व्हाट इज गेट एग्जाम? गेट एग्जाम का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग. द क्वेश्चंस 65 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, एंड टोटल ड्यूरेशन इज 3 आवर्स. ओके, चलिए. सो लेट वी स्टार्ट टुडेज सेशन. लेट मी क्लियर द स्क्रीन. इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन चैट सेक्शन. So if you want to be in IIT, you require GATE examination. For MTech, if you want to be in PSU, you require GATE examination. And average package of PSU is 12 lakh to 15 lakh, and 12 to 18 also. Yes. If you want to be in any R&D sector like DRDO, ISRO, like CSIR or TIFR, these are the research organization of India. Okay. If you want to be JRF, Junior Research Fellow, and SRF, Senior Research Fellow, in any IIT, that time also you required GATE examination scorecard number 5. If you want to be in any private or government organization or for the contract basis also, so also that you required GATE scorecard. If you are having GATE scorecard, जो ONGC and GAIL, SAIL, इसमें जो भी पार्ट टाइम भी रहता है ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसमें भी वो गेट के स्कोर कार्ड को they will give you weightage. Okay, so please remember, if you want to be in any field after engineering, you have to give GATE examination, and valid GATE scorecard will give you definitely a lot profit. Okay, so this is very profitable exam. I always name it golden gate, not the gate. This is golden gate. ये एक डोर है engineering students को to get success in his life. For engineering student, this exam is must, है ना? If you are having 90% degree, 90% of degree, and if you are having no GATE scorecard, your 90% degree is not valuable. If you are having 60% degree only, but you are having GATE scorecard, then you are preferable over 90% degree holder. Okay, so very easy exam. I will guide you completely. Don't worry. So let me start today's session. Everybody have written this? Okay, chaliye. So let me start today's session, and please write it down. Write it down with me, and if any doubt, ask me in chat section. Okay, chaliye. So the topic we are starting is linear algebra. We are starting is linear algebra. आप साथ में कॉपी पेन लेके मेरे साथ में लिखते जाइए, है ना? हम एक एक पॉइंट को लिखने की कोशिश करेंगे, सब कुछ अच्छे समझेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट इज लीनियर अलजेब्रा. अब लीनियर अलजेब्रा में वी आर स्टार्टिंग विद मैट्रिसेस. हम किससे स्टार्ट करेंगे? मैट्रिसेस से. सो लिखिए मैट्रिसेस. सबसे पहले क्या होता है? ठीक है. सो मैट्रिसेस क्या है?
आपके पास एक बड़ा सा एक मान लीजिए कॉलोनी है ना, आप जहां रहते हैं वो एक कॉलोनी में रहते हैं। वेट अ मिनट, लेट मी डिसेबल, यस। सो आप एक बड़ी सी कॉलोनी में रहते हैं। सो आप घर के नंबर भी देखेंगे ना, अगर जो बिल्कुल सिस्टमेटिक कॉलोनी बनी हुई है तो वो क्या रहेगा, उसमें कॉलम्स रहेंगे बहुत सारे। अगर हम उसका एरियल व्यू देखें, ठीक है, तो ये कॉलम्स हो गए, ये रोस हो गई, ठीक है। तो देखिए, अगर मुझे पता करना है, मुझे अगर नेम देना है कि ये जो घर है इसका नंबरिंग में कैसे करूं, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट कॉलम, इसको बोलेंगे सेकेंड कॉलम, इसको बोलेंगे थर्ड कॉलम, इसको बोलेंगे फोर्थ कॉलम, ये फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स कॉलम। सो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 6। नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 1 2 3 4, कितनी हो गई, 4, है ना, 1 2 3 एंड 4। दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ रोज। ओके, चलिए अब मुझे अगर बताना है, मुझसे किसी ने पूछा कि यहाँ पर घर किसका है, यहाँ पर जो घर है उसका नंबरिंग कैसे हम डिनोट करेंगे, तो हम क्या बताएंगे उसको, हम बताएंगे दिस पिंक कलर जो होम है दैट इज आर जो है वो रो 3 एंड कॉलम भी कितना 3। सो हमेशा उस घर को हमने नाम दे दिया, मान लीजिए ए इज डिनोट कि वो घर है, उसका रो कौन सा है 3, कॉलम क्या है 3। सो हम हमेशा पहले रो को लिखते हैं और फिर कॉलम को लिखते हैं। सो दिस इज द नंबर और A33 that we are representing the home here। अच्छा, तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि यहाँ पर जो घर है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा ब्लू वन, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट अस से इट इज, मान लीजिए श्वेता का घर है, सो इट इज 2 is the row and 5 is the column, so it is represented by 2 5। if this is the home, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, it is always given by A and that is 4 and 5। understood? so this is nothing but always, हाँ अच्छा। एंड सेकेंड इज इसका ऑर्डर क्या होता है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर मैट्रिक्स का होता है नंबर ऑफ रोज इनटू, दिस इज क्रॉस, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, केवल क्रॉस लिख रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, अभी कितनी रो है 4, कॉलम कितने हैं 6, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या हो गई, मैट्रिक्स ऑर्डर इज 4 क्रॉस 6। ठीक है, चैट में रिप्लाई करते जाइए अगर यू आर गेटिंग एवरीथिंग, और अगर नहीं है तो बता पूछते जाइए कोई डाउट हो तो। सो मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या हो गई, m क्रॉस n और नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, ठीक है, सो चलिए, सो नाउ लेट मी राइट इट हियर। चलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n, एनी मैट्रिक्स m क्रॉस n, व्हाट डज इट मीन, नंबर ऑफ रोज कितनी है m, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, लेट मी रिप्रेजेंट, ओके। सो A11 A12 मतलब फर्स्ट रो की बात चल रही है, रो 1, ये कॉलम 1, ओके, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, देन A13 दिस इज कॉलम 3, दिस इज A14 दिस इज कॉलम 4 एंड दिस इज, कितने हैं रो, कॉलम कितने हैं n कॉलम। सो इसको हम नाम देंगे A1n। अंडरस्टूड, समझे, यस, इसको हम बोलेंगे A1n। वैसे ही रो 2 है अगर, दिस इज रो 2, साथ में लिखते जाइए, इट इज A21 देन A22 देन A23 देन A24, कहां तक जाएंगे A2n, यस। और बताइए टोटल रो कितनी है, ये है रो नंबर m, तो इसको हम लिखेंगे AM1, मतलब mth रो और फर्स्ट कॉलम,
इसको हम लिखेंगे AM2, मतलब mth रो सेकंड कॉलम, ऐसे कहां तक जाएंगे AMN, मतलब mth रो एंड nth कॉलम, और m और n क्या है, कोई भी इंटीजर है, क्या है, कोई भी इंटीजर। सो m क्रॉस n इज द साइज ऑफ मैट्रिक्स, इस क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर इज m क्रॉस n। वेरी नाइस, प्लीज राइट इट डाउन एंड लेट मी नो व्हेन डन। सभी लोग अच्छे से लिखिए। ओके, अब सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिखिए, सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, प्लीज राइट डाउन टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, यस वेरी नाइस। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में नंबर 1 लिखिए, यू राइट नंबर 1, साथ में लिखते जाइएगा, इट इज रो मैट्रिक्स, इट इज रो मैट्रिक्स। ओके, आपको हम बता चुके हैं व्हाट इज दी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स में रो क्या होता है, इफ दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस आर दी नंबर ऑफ रोज, है ना, दिस इज A11 A12 कहां तक, A1n तक, ओके, लाइक दिस AM1 AM2 and up to AMN, okay, so now the thing is m is number of rows, okay, n is number of columns, very much clear. Now the thing is, what is row matrix? So when only one row, when only one row in a matrix, it is called रो मैट्रिक्स, ठीक है आदित्य। तो अगर केवल एक रो है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रो मैट्रिक्स। सो एग्जांपल क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल लिखिए, ओके, सो फॉर एग्जांपल यू कैन राइट A इज इक्वल टू ओनली वन रो, मतलब A11 A12 कहां तक, A1n तक। सो इसका साइज क्या रहेगा, ओनली वन रो एंड कॉलम में बी n, एनी नंबर ऑफ कॉलम। तो सो रो मैट्रिक्स की साइज हमेशा क्या होगी, 1 क्रॉस एनी नंबर, n में बी 1 2 3 4 डिपेंड करेगा, ओके। सो वन एग्जांपल इज दिस, अनदर एग्जांपल, लेट अस से मैट्रिक्स B इज 3 5, it is 3 5 -7 10 like this। तो ये इसकी साइज क्या हो गई, 1 क्रॉस 4। सो दिस इज ऑल्सो रो मैट्रिक्स, एंड रो मैट्रिक्स की साइज क्या हो गई, 1 5 -7 and 10 like this, okay, please write down and let me know when done, okay। So now second one is column matrix, so please write column matrix। So what is column matrix, okay, so simple, column matrix क्या होगा, the matrix in which only one column is there, a matrix in which only one column is there, है ना, एंड रो तो कितना भी हो सकता है, is there। So what will be the pattern of this, the pattern will be matrix A, pattern will be only one column, so this will be A11 A21 A31 like this, AM1, so it is size will be m cross 1, okay, so m cross 1 will be size, it means column is always 1, so when column is always 1 it is called column matrix, when column is 1 it is called column matrix, please write it down। So example you can write matrix B is, write down some numbers, so 7 0 -8 1 2, this is the column matrix,
in which size is 1 2 3 4 5. So 5 cross 1, this is the size of column matrix. Okay, please write it down and let me know when done. Yes, so this is done. Now so next is rectangular matrix. So what is rectangular matrix? Next is a rectangular matrix. So what is the shape of rectangular? You know what is rectangular? Rectangular is of this shape. Okay, so the matrix of this shape, what does it mean? Matrix of this shape, what does it mean? Matrix having some number of rows and some number of columns. So this is also matrix and this is also matrix. Okay, so maybe in this case number of column will more than number of rows, and in this case number of rows will be number of column. Very easy. Understood? So this is both are column matrix. You know, there is no distinguish between these two. Okay, so if number is, let us write 1 2 3 4. Okay, -5 -6 -7 -8 11 12 13 and 14, like randomly I have given the number. So now number of rows are 1 row, 2 row, 3 row. So this is 3. Number of columns 1 2 3 4. So 3 cross 4. So this is nothing but the rectangular matrix. Understood? Similarly, if I'll write, everyone is audible? कोई भी दिक्कत हो, please let me know. Okay, yes. At the same time, we will provide you, this lecture is also recording. So we have the app, we will give you access. So उस ऐप पे जो भी हमारे लेक्चर चल रहे हैं, you can see the recorded lecture also. Okay, so if you will miss some lecture, you can see the recorded lecture also on the app. Okay, so this is matrix B is there. If okay, so let us say it is 2. Okay, so yes, so let us say this matrix 2 3 4 5 6 7 11 12 13 16 17 and 19. Okay, so this matrix is 1 2 3 and 4. So 4 number of rows, it is having 4 number of rows into how many column? 1 2 3. So it is 4 cross 3. So this is called rectangular matrix. So rectangular में जो लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होते, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला. ओके, इफ यू वांट टू ड्रॉ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें क्या रहेगा? नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे. दैट विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स. अंडरस्टूड? सो फोर्थ नंबर वी विल नेम स्क्वायर मैट्रिक्स. इतना लिख लीजिए और साथ में लिखते जाइए. स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या रहेगा? नंबर ऑफ जो रोस हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल रहेगा. समझे? तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रहेगा. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दिस विल बी द स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. सो 11 12 13 16 17 19 8 2 7 रैंडम नंबर है गिवन. सो ये क्या हो गया? 4 रो हो गए, 4 कॉलम हो गए. सो 4 क्रॉस 4 means number of row, number of column. This is called square matrix. Please write it down. Aram. Okay, so the next is diagonal matrix. So what is the diagonal? You all know in coordinate geometry. Next लिखिए diagonal matrix number 4. diagonal matrix. ठीक है सोनिया, लिखते जाइए. सो डायगोनल मैट्रिक्स. तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा? व्हाट डज इट मीन? डायगोनल कैसा होता है, याद है आपको? इफ दिस इज द रेक्टेंगल और स्क्वायर एनीथिंग. सो डायगोनल कैसा रहता है? दिस इज ऑल्सो डायगोनल एंड दिस इज ऑल्सो डायगोनल. ठीक है, समझे ना? तो अब देखिए, आपके पास कोई मैट्रिक्स है. लेट अस से आपके पास मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 5 का. तो ये A11 A12 A13 A14. ठीक है, एंड आपने उसको लिखा दिस इज लाइक दिस. एंड A51 A52 कहां तक? A54 तक. तो ये क्या हो गया?
5x4 मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो 5x4 मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, इस मैट्रिक्स में ओनली डायगोनल टर्म्स हैं। सो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है, डायगोनल मैट्रिक्स का मीनिंग ये है, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर देयर, these are the elements, it will be having. What does it mean? Only diagonal elements will be there, 1 2 3 4. Okay, only these elements will be there, other element will be 0. Okay, other element will be 0. So what does it mean? We will be having only diagonal elements, so other elements will be 0. Please write it down. This is called diagonal matrix. Okay, so generally it is written DIA diagonal, DIAG diagonal, एंड ब्रैकेट में डायगोनल में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 and 4. So meaning of this matrix is nothing but this matrix. Understood? Yes, please write it down. Yes, जो भी डाउट है पूछिए. So let me clear this. Okay, so next point is, अच्छे से लिखिए, अच्छे से इसका स्टेटमेंट लिखिए. A square matrix, a square matrix, this is the definition of diagonal matrix. A square matrix, क्या लिखा मैंने यहां पर, केवल एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही मैं डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करता हूं, ठीक है. उसको हम बताते हैं कैसे. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be a diagonal matrix, is said to be a diagonal matrix if all its, अच्छे से लिखते जाइए, all its non diagonal elements are zero. What does it mean? अच्छे से मुझे बताइएगा. आप किसी भी मैट्रिक्स को ए आई जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर आई इज इक्वल टू रो एंड जे इज कॉलम. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है. अभी आपका क्लियर हो गया, अक्षय एंड मृणाली, आई गेस. हाँ, इट इज ऑल्सो ओनली फॉर स्क्वायर. इज इट क्लियर? हमने यहाँ पर लिख दिया है इसको. यस, ठीक है. अब देखिए, ए आई जे का मतलब क्या है. इफ आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू 2, क्या होगा एलिमेंट? A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो दिस विल बी द एलिमेंट A11, A12, A13, like this. This is A21, A22, A33. It is A31, A32, A33. This is what? 3 cross 3. Understood everyone? So इस I और J को I will vary from, I is varying from 1 to 3 and J is varying from 1 to 3 also. Very nicely understood. कोई डाउट इसके अंदर ना? अब मुझे बताइए, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बताइएगा. ए आई जे इज इक्वल टू 0 एंड ए आई जे नॉट इक्वल टू 0. मैं कंडीशन लिख रहा हूं, इज 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन आई इक्वल टू जे. व्हाट डज इट मीन? समझ रहे हैं? अब आप मुझे बताइए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए A11 नॉन जीरो, A22 नॉन जीरो, मे बी जीरो ऑल्सो, इट मे बी जीरो ऑल्सो, लेकिन ये तो जीरो रहेगा ही सही, ये तो जीरो रहेगा ही सही. ओके,
and A33 non-zero. Condition for diagonal matrix. सर A23 आएगा. Yes. Second row. Yes. Yes sir. This is A23. Perfect. समझे? सभी का डाउट क्लियर हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स समझ गए अच्छे से? प्लीज राइट इट डाउन एंड लेट मी नो व्हेन डन. ओके, सो अनदर क्वेश्चन क्या आया है? चलिए, अनदर क्वेश्चन क्या मिला है हमको कि अगर लाइक से A11, A22, A33 0 0 0 0 0 0. अभी क्वेश्चन ये है, किसने पूछा है? लेट मी. यस, सो क्वेश्चन है प्रेरणा का. वेरी नाइस क्वेश्चन. यस, सो अगर इनका क्वेश्चन है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल. क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल. ठीक है. इफ एनी एलिमेंट, इसको अच्छे से लिखिए स्टेटमेंट को. नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, नो एलिमेंट of principal diagonal, no element of principal diagonal in a diagonal matrix is 0. Understood? It means ना A11, ना A22, ना A33, इसमें से कोई एक भी 0 नहीं होना चाहिए. Am I clear? Very much. Any doubt, any confusion, please let me know. So it means this matrix is represented by diagonal and bracket में A11, A22 and A33. If somebody will say this is 1 0 0 0 0 0 0, this is 1, and if this is 0, okay, so I will not say diagonal 1 0 1. So this is not the correct answer. Okay, this will not be the diagonal matrix. Diagonal matrix means all three elements must be finite. All three elements must be finite. Understood? If any doubt, please let me know. So now I can write it diagonal 1 to 1. Very nice doubts. Very good. So the next very nice doubt. Okay, so अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. क्या है मैट्रिक्स? 2 8 9 3 9 -2 4 7 -3 5 -2 and 4. So what is the order of matrix? It is 3 rows and 4 columns. It is 3 rows and 4 columns. अब आप मुझे बताइए, where we draw the column, क्या हम इसका कोई डायगोनल बना पाएंगे? Where I will say, so 2 9 and -3 इस तरीके से कॉलम हो गया. लेकिन we cannot say equivalent of diagonal in the rectangular matrix, है ना? That is not defined. ठीक है तुषार, आपका डाउट भी क्लियर है? चलिए, सो अभी हमने ये मैट्रिक्स बना ही दिया है, तो इस मैट्रिक्स का नाम लिख दीजिए. दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. सिमिलरली अगर हम बताएं आपको क्या होगा वर्टिकल मैट्रिक्स, तो वो भी साथ में बना लीजिए. लेट अस से वर्टिकल मैट्रिक्स. सो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा? लेट अस से दिस इज मैट्रिक्स बी. सो वर्टिकल मैट्रिक्स आप ही मुझे बताइएगा, ठीक है, कि क्या उसमें कंडीशन रहेगी. ठीक है, लेट मी से 2 3 4 0 -1 7 3 5 4 2 7 9 and it is -1 2 and -5. It is 5 क्रॉस 3. दिस मैट्रिक्स is 5 क्रॉस 3. इसको हमने बोला वर्टिकल मैट्रिक्स. सो अब बताइए कुछ इसके लिए कंडीशन आप सोच सकते हैं. When number of column
आर मोर देन नंबर ऑफ रोज, तो उसको क्या बोल देंगे हम, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। व्हेन नंबर ऑफ रोज आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या बोलेंगे उसको, इट विल बी कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। दिख ही रहा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, दिस इज वर्टिकल मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? प्लीज राइट इट डाउन एंड लेट मी नो व्हेन डन। Okay, so let me clear this. This much is very much clear. Now let me move to next one. So next is called, let us say unit matrix. अभी जिसने क्वेश्चन पढ़ा था उनका भी हम डाउट क्लियर करते हैं। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ओके, ध्यान दीजिए, हमने क्या स्टेटमेंट बोला है, अ डायगोनल मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स मतलब पहले डिफाइन क्या हो गया कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो डायगोनल मैट्रिक्स है, उसी को ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यस शुभम, एनी डाउट और बाय मिस्टेक रेज्ड हैंड? ओके, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be identity matrix, is said to be identity matrix if its diagonal elements are equal to 1। समझे? तो अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स सभी 1 हैं तो वो क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। सो I1 मतलब जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट, दिस इज 1। I3, I2 is 1 1 0 0, I3 that is 1 1 1 0 0 0 0 0 0। okay, so likewise we can say, ठीक है, so I1 is 1 cross 1, 2 is 2 cross 2, 3 is 3 cross 3। likewise we can say this is nothing but the identity matrix or unit matrix। okay, please write it down, है ना। एंड जब, ध्यान दीजिए, जब केवल एक एलिमेंट होता है ना मैट्रिक्स में, अगर केवल एक एलिमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगलेटन मैट्रिक्स। सिंगलेटन मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं सिंगलेटन मैट्रिक्स? व्हेन इट हैज ओनली वन एलिमेंट, व्हेन मैट्रिक्स हैव only one element, have only one element, तो उसको बोलते हैं सिंगलेटन मैट्रिक्स। प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रेंगुलर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। राइट इट डाउन, देन वी विल डिस्कस। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग वी आर डिस्कसिंग इज ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। क्या देख रहे हैं हम अगला? ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। we are seeing is triangular matrix। तो आपको ट्रायंगल का शेप तो पता ही है। सो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं, देखिए अभी हम इसको हम डिवाइड करेंगे बिलो प्रिंसिपल डायगोनल एंड वी विल राइट इट बिलो प्रिंसिपल डायगोनल एंड अबोव प्रिंसिपल डायगोनल। क्या मतलब है उन दोनों का? लेट मी डिस्कस। ठीक है, पहली बात तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो गया? ओके, सो उसमें हम बात करेंगे पहला अपर डायगोनल, लेट अस से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड सेकेंड वन इज, ये जब मैंने गेट दिया था मुझे क्वेश्चन आया था लोअर अपर, है ना।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनके लिए तो पावर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, एलयू डिकम्पोजिशन। उसके ऊपर क्वेश्चन 2010 2011 मुझे दोनों साल आया था। ओके, सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एक अपर ट्रायंगुलर हो गया, एक लोअर ट्रायंगुलर हो गया। तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब आप क्या समझेंगे, आप खुद ही सोचिए। आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, आपके पास एक मैट्रिक्स है 4x4 का, आप रैंडम नंबर दे दीजिए 3 - 2, वेट अ मिनट, यस, आप रैंडम नंबर दे दीजिए 3 - 2 4 1 0 2 -3 2 0 0 7 5 0 0 0 8। क्या ऑर्डर है मैट्रिक्स की, 4x4। अपर क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। सो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट आपके हैं, और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे आपके एलिमेंट क्या है, 0 है। तो ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट दी अपर डायगोनल मैट्रिक्स। दिस इज नथिंग बट दी अपर डायगोनल मैट्रिक्स, वेरी इजी। ओके, आपको मैं कुछ गेट के क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दी अपर डायगोनल मैट्रिक्स। सिमिलरली आप भी मुझे सोच के बताइए तुषार, इफ इसी मैट्रिक्स को लेट मी राइट, इसको डायगोनल एलिमेंट में सेम रखता हूं 3 2 7 8 0 0 0 0 0 एंड दिस इज 0। अच्छा, बिलो अपर डायगोनल सारे एलिमेंट आप रख दो 8 7 6 है ना, 5 4 3। सो अब क्या हुआ, प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो सारे एलिमेंट क्या आ गए आपके, पॉजिटिव। तो इसको हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव मींस, पॉजिटिव नेगेटिव मींस नॉन जीरो, पॉजिटिव नहीं नॉन जीरो। सो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एलिमेंट क्या हो गए, नॉन जीरो। तो दिस इज कॉल्ड, दिस पैटर्न इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। सो पावर सिस्टम में काम आता है ये मैट्रिक्स का, जब हम पढ़ते हैं क्रॉन रिडक्शन, है ना, दैट इज यूज्ड इन, जब हमको यूज आएगा, हम वाई बस मैट्रिक्स बनाते हैं उस टाइम पे ये यूज आता है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो, लेट मी क्लियर इट एंड लेट मी मूव टू नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन गेट में दिखेंगे, है ना, वी विल कोरिलेट इट विद इनवर्स मैट्रिक्स से एंड मल्टीप्लिकेशन से, लेकिन वी विल कॉल इट, इसका नाम है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। दिस विल कम इनटू पिक्चर व्हेन वी विल कैलकुलेट द आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज जब पढ़ेंगे तब ट्रेस पिक्चर में आएगा, लेकिन अभी आप इसको बस इतना समझिए, द सम ऑफ ऑल diagonal elements, sum of all diagonal elements, the sum of all diagonal elements of a square matrix, of a square matrix A, let us say matrix is Aij, okay, और क्या ऑर्डर है उसकी, m क्रॉस n, let us, so it will be always m cross m, है ना, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस। सो ट्रेस इज गिवन बाय, हम उसको नाम देते हैं टी आर, है ना, और ब्रैकेट में लिखते हैं ए, जो मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू कहां से कहां तक, i इक्वल टू 1 से m तक, और ए आई आई। देखिए बस दिखने में थोड़ा टफ दिख रहा है ये, बट है कितना इजी चीज, लेट मी टेल यू। चलो इसको हमने इस पैटर्न में लिख दिया, इसलिए थोड़ा टफ दिख रहा है, अदरवाइज क्या है, ये आपके पास मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, लेट अस से इट इज 3x3, so 2 - 7 9 0 3 2 and 8 9 4. So trace
of matrix A is given by sum of diagonal element, मतलब AII मतलब A11 plus A22 plus A33. Very easy. So what is A11? That is 2 plus what is A22? That is 3. What is A33? That is 4. So 3 plus 4, 7. 7 plus 2, it is 9. So this is nothing but the trace of matrix A. Please write it down. And if any doubt, please let me know. And then we will see properties of trace of a matrix, जो कि possible question है. Understood? Please write it down and let me know when done. चलिए, so very nice. Let me clear this. And now you can write properties of, please write down properties of trace of a matrix. Please write down properties of trace of a matrix. Properties of trace of a matrix. Okay. So what is the property? What is properties of trace of a matrix? Okay, चलिए सबसे पहले बताइए मुझे. Let me tell you. आपके पास एक TR K into A. ओके, आपके पास एक मैट्रिक्स था A. लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रैंडम मैट्रिक्स आई हैव टेकन 3 क्रॉस 3 का. ओके, यस. सो आपके पास 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स था, कोई डाउट नहीं. इसका ट्रेस कितना आया? इसका ट्रेस क्या होगा? 1 + 5 + 9. 1 + 5 + 9 कितना? 15. वेरी नाइस. अब देखिए अब क्या हुआ इसके अंदर. अगर आपने के फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया किसी मैट्रिक्स में, सो के इंटू ए क्या होता है? इंडिविजुअल एलिमेंट में के का मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट इज के, इट इज 2k, इट इज 3k, इट इज 4k, इट इज 5k, इट इज 6k. है ना? के एक एनी फाइनाइट नंबर है. 7k, 8k, 9k. समझे? सो अगर हम ट्रेस ऑफ के इंटू ए मैट्रिक्स निकालेंगे तो वो क्या होगा? के प्लस 5k प्लस 9k कितना हुआ? 15 इंटू के. तो इसको हम बोलेंगे ट्रेस ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू के इंटू ट्रेस ए. ट्रेस के इंटू ए हम बोलेंगे के इंटू ट्रेस ए. Understood? Very nicely. Please write it down and ask me if any doubt. This is number 1. 15k. Very good. Very good. Shreyansh. Shreyash. Pratiksha good. Adit good. Chaliye. So this is very much clear. Now the second one is trace of. We are having two matrix. हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए एंड वी आर हैविंग मैट्रिक्स बी. ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स था, हमारे पास एक बी मैट्रिक्स था. ठीक है. सो ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ बी इंडिविजुअल हमारे पास था. ओके. सो अगर हमको निकालना है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस माइनस बी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस माइनस बी, इफ यू वांट टू कैलकुलेट plus minus b. So that is nothing but trace A plus minus trace B. Okay. Please write it down and try to understand it and let me know if any doubt. Next is if you are having matrix AB, so trace of matrix A into B is equal to trace of matrix B into A. This is also one property. Okay, please write it down. Okay, now if you can write, if you want to find out trace of I3, बताइए कितना होगा? ट्रेस ऑफ I5 बताइए कितना होगा? ट्रेस ऑफ, इफ, चलिए मैं नाम से पूछूं क्या?
अगर आप ट्रेस बताएंगे आई एन का तो क्या लिख पाएंगे? देखिए I3 का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I3? 1 1 1 बाकी सब 0. सो व्हाट इज ट्रेस I3? 1 plus 1 plus 1. It is 1 plus 1 plus 1, that is 3. So I3 का ट्रेस है 3, I5 का ट्रेस 5, so IN का ट्रेस N. वेरी नाइस, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड. शिवम, तुषार, प्रतीक्षा, श्रेयाश, अंजलि, perfect, very good Ankita, very nice. Okay, so let me clear this and let me move to next one. So next is determinant of a square matrix. हमने पहले ही बोल दिया स्क्वायर मैट्रिक्स, नो डाउट. क्या है टॉपिक का नाम? डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, वेरी बेसिक से वी हैव स्टार्टेड. हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहले आपको मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, उसके बाद में वी विल सॉल्व ऑल प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस सो दैट यू विल नो कि गेट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है ना. आपका जब सेमिनार लिया था मैंने बताया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कम कर पाएंगे. सो यू आर हैविंग द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम चांसेस टू क्लियर द गेट एग्जामिनेशन. ओके, सो डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. सो व्हाट इज द डिटरमिनेंट? लेट मी राइट. Matrix you are having A. Okay, if you are having A11, A12, A21, A22, कितना साइज है इसका? 2 क्रॉस 2. ओके, सो इसका डिटरमिनेंट हम डिनोट करते हैं मॉड A से. दिस इज मॉड A. सो डिटरमिनेंट इज 2 क्रॉस 2 का तो बहुत इजी है, A11 क्रॉस A22 माइनस A12 into A21. Very easy. That is for 2 cross 2 matrix. Okay. Now, what is the determinant when it is 3 cross 3? When it is 3 cross 3, पहले आपको फॉर्मूला लिख के दे देता हूं, उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ओके, ये मैट्रिक्स है, इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना है मॉड है. ओके, चलिए ट्राई इट. आपको सबको आता ही ये. ओके, सो मॉड A इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट A11. A11 रखिए, इस रो और इस कॉलम को हटा दीजिए, ये रो और ये कॉलम हटा दीजिए और डिटरमिनेंट निकाल लीजिए इसका. किसका? A22, A23, A32 and A33. दिस डिटरमिनेंट. ओके, देन सेकंड एलिमेंट क्या है? A12. सो माइनस A12, सेकंड टाइम पे आपको माइनस लेना है. ठीक है, ये कॉलम को हटाना है, ये रो को हटाना है, तो क्या बचा? A21, A31. ठीक है, A23 and A33. Please let me know if I have done some mistake. It is your duty. Plus A13. ठीक है, सो हम डिटरमिनेंट किसका लेंगे? इस कॉलम को हटा दो, इस रो को हटा दो, क्या बचा? A21, A31, A22 and A32. Yes, so this is the determinant. So now with this help of this I can calculate the mod A. If any doubt, please let me know. And if it is clear, find the determinant of the given question. Let me write the question also. आप ये साथ में लिखिए और क्वेश्चन भी लिखिए. And answer me after this. लिखने के बाद में आंसर दीजिएगा. 3 6 2 4 7 -3 5 8 5. Find the determinant of A. Okay, please write it down. Okay, you all have done almost. Yes, so let me just solve for the people who cannot do or just confirming. Okay,
so it is 3 6 2 4 7 minus 3 5 8 5. Yes, so mod A will be 3 into, so directly I can solve 7 into 5 minus 8 into 3, so it will be minus 8, means this one. Okay, minus 4. So can I write directly 3 into 35 minus minus plus 24. Okay, then minus 4, so it is minus 4. 6 into 5 30 minus 8 into 2 16 plus 5. 6 into minus 3 is minus 18 minus 7 into 2 minus 14. So when you will solve it, you will get minus 39, and the fastest answer from Vishrut. Very nice. Clear it. And let me move to next one. So the next one is equal matrices. Write down equal matrices. Equal matrices. What is the meaning of equal matrices? When each element of two matrices are equal, but they should be having same order. Of course, तभी तो each element equal रहेंगे. So write it down. Two matrices are said to be equal. Are said to be equal. Okay. If, write down first one. First statement is they are of the same order. They are of same order. What is the meaning of same order? n m cross n है ना, दोनों की ऑर्डर क्या होना चाहिए, m क्रॉस n. अगर 3 क्रॉस 4 तो दूसरा भी 3 क्रॉस 4. ओके, सो दे आर ऑफ सेम ऑर्डर. इट मींस सेम नंबर ऑफ रोज, सेम नंबर ऑफ रोज and same number of columns. Same number of columns. Okay, very nice, very easy. Now second one which we will tell the elements in the corresponding position of the two matrices are equal. We can say, or easy sentence we can say, individual elements are equal. Okay, so what does it mean? Let me see. So for this we will solve one question, and please try to give me answer. Two matrices are given, x plus 3. हाँ अक्षय, कोई डाउट है आपको या बाय मिस्टेक वो रेज एंड हो गया? प्लीज आस्क मी इन चैट बॉक्स. 4w minus 8 is equal to, if it is minus x minus 1, 0, 3 and 2w. This 2 is given. So question is find the value of, find mod x plus y. mod का मतलब क्या होता है पता है ना, नेगेटिव वैल्यू को हटा के केवल पॉजिटिव लेंगे. and mod z plus w. This is the question. This is a good question. Please try to solve it. So meaning of individual elements are equal. It means x plus 3 is equal to minus x minus 1. तो यहाँ पर लिख दीजिए x plus 3 is equal to minus x minus 1. So 2x is equal to minus 4. So x equal to कितना हो गया, minus 2. तो यहाँ पर लिख दीजिए x equal to minus 2. Very nice. Now second, 2y plus x equal to 0. 2y plus x equal to 0. This element equal to this element. ठीक है. So x कितना आया, minus 2. So 2y is equal to minus x मतलब 2. So y कितना हो गया, 1. तो यहाँ पर लिख दिया मैंने y equal to 1. Very nice. Very short space we are having. इसको मुझे पूरा रफ करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हो पा रहा है तो we don't have any issue. Then z minus 1 is equal to 3 means z equal to 4. z भी आ गया. Now next is w. So 4w minus 8 is equal to 2w. So we can say 2w is equal to 8. So we can say w is 4. So w क्या हो गया, 4. कुछ मिस्टेक तो नहीं किया मैंने? Yes, perfect.
ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या है, लेट मी राइट इट हियर, प्लीज अलाउ मी. सो x इज -2 प्लस y इज 1, इसका मॉड लेना है, प्लस मॉड z इज 4, 4 प्लस 4, सो -2 प्लस 1 इज -1 का मॉड, that is mod 8. So -1 का mod is 1 plus mod 8 का mod 8. So 9 is the correct answer. But you have to solve this question within 2.8 minutes. That is the big challenge. Okay? कैसा भी क्वेश्चन है, टफ नहीं आएगा गेट में किसी भी हालत में. ओके, जस्ट यू हैव टू सॉल्व इट विद इन टाइम एंड सही जगह पे आपका मेथड जाना चाहिए. बस जो कर पाता है वो आराम से गेट निकाल पाता है. Let me clear this and we will move to next question. Same pattern का question है. Same pattern. If the question is 2 alpha plus 1, it is 0, it is 3 beta, it is beta square minus 5 beta, okay, is equal to, this is alpha plus 3, it is बीटा स्क्वायर प्लस 2. यस विजया, कोई डाउट है आपको या बाय मिस्टेक हुआ, प्लीज आस्क मी इन चैट बॉक्स. ओके, दिस इज गिवन. सो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज फाइंड. ओके, पहले इसको सॉल्व करिए. एंड गिवन द मैट्रिक्स आर इक्वल, गिवन भी इक्वल देके रखा है. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा and beta. Yes. Okay, very nice, very good response. So first of all क्या करिए आप, 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3 कर दीजिए. सो 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3. सो 2 अल्फा माइनस ये आ जाएगा 2 अल्फा माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1. ठीक है. So 2 alpha plus 2 alpha minus alpha is alpha and 3 minus 1 is 2. Very nice, very easy. अब देखिए next one is 3 beta is equal to beta square plus 2. So 3 beta is equal to beta square plus 2. This is one equation, and another is beta square minus 5 beta is equal to minus 6. Understood? So now with the help of beta square minus 3 beta plus 2 is equal to 0. So from here beta is equal to 3 plus minus b square. So 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 8 डिवाइड बाई 2. सो बीटा कितना आया 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2. तो 3 प्लस 1 अपॉन 2 कितना 4 अपॉन 2 2, एंड 3 माइनस 1 2 अपॉन 2 दैट इज 1. ओके, पहला इक्वेशन तो ये आ गया, और कुछ मिस्टेक तो नहीं है मेरा, चेक करिए. दैट इज 1 एंड 2. ठीक है. सेकेंड इक्वेशन से बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 6 इक्वल टू 0. तो यहां से बीटा कितना आया, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा माइनस 2 बीटा प्लस 6 इक्वल टू 0. तो यहां से बीटा आ गया 2 एंड 3. यस, परफेक्ट. तो जिसने आंसर दिया था बीटा 2, एब्सोल्युटली करेक्ट. So beta is 2 and beta is 2, common beta हम लेंगे. So common beta is 2. Very nice, very perfect, very good. अच्छा, चलिए ठीक है. ओके, परफेक्ट परफेक्ट, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया. अगर किसी को, चलिए, वेरी गुड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the question is based on the addition of matrices. The question is based on addition of matrices. There is no need to only question will tell us what is the addition of matrices. So I will cover 2-3 type of question in a single. Okay, so this is 4 into means multiplication of scalar. 1 minus 1 4. It is 2 minus 2 2. It is 3 minus 3 and 6. This is matrix. Plus 2 into, it is 5 3 and 3. It is 4 2 8. This is 1 4 and 2.
Okay, so this is a matrix. So the question is determine determinant of a determinant of a. Okay, yes, please solve it and then let me know what is the determinant of matrix. Very nice question. Okay, okay, so you solve in your notebook, let me solve it here. So first of all, matrix A is 4 into, so I will do 4 minus 4 16, because 4 will be multiplied in individual element. 8 minus 8 8. Okay, 12 minus 12 24, then plus, that is 10 6 6, it is 8 4 16, this is 2 8 and 4. Okay, so this is matrix A. So when you will add this, 4 plus 10, how much? 14. 8 plus 8, how much? 16. 12 plus 2, how much? 14. Very nice. 4 minus 4 plus 6, 2. Minus 8 plus 4, minus 4. Minus 12 plus 8, minus 4. 16 plus 6, 22. 8 plus 16, it is 24. For 24 plus 4, 28. Okay, so now we have to determine the determinant of the matrix. Okay, all are giving different answer. So I will give you shortcut also of this determinant, लेकिन अभी नहीं बताना चाहता मैं आपको, पहले आप हम मेहनत से ही सीखें इसको करना, then I will give you short trick also. So 14 into 28 into 4, so 58 56 into 2, that is 112. So it is minus 112, minus minus plus 24 into 4, so 48 into 2 is 96. Okay, then minus 16, it is 2 into 28, 56, minus 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 plus, and 22 into 4 is 88. Yes, plus 14, so it is 2 into 24, that is 48, then plus 22 into 4, that is 88. Understood? So now this is nothing but, now you can calculate 14 into, it is 12 plus 4, how much? 16, minus 16. Okay, then minus 16 into 56 plus 88, so 8 plus 6 14, that is 4, then 6 plus 8, so that is 14, 144, then plus 14 into 48 plus 88, 88 6, and then 5 for 8 30. So this is nothing but, you can calculate it. I don't have any answer, means I don't have an answer with me, so we have to calculate it. So it is nothing but minus 224, isn't it? Then 16 into, I can write it 12 into 12, so 16 into, I guess it is nothing but the 43 square. No, it is 2304 will come. Yes, perfect. Then plus 136 into 14. So you can write 1360 plus 4 into, so 4 plus this one. So it must be 1904. Yes. So now let me know the answer. Everyone. So anyone? Minus 624. Perfect. Almost all are getting the same. चलिए मैं भी सही हूं मतलब. चलिए minus 624. So देख लीजिए मैंने ये कैलकुलेशन थोड़ा हवा में किया है. So just confirm it. Okay. चलिए परफेक्ट. मेघा इज करेक्ट, अंकिता करेक्ट, तुषार करेक्ट, आदित्य करेक्ट. चलिए मतलब करेक्ट मीन्स मुझसे दे आर कोरिलेटिंग. संकेत एक बार चेक करो फिर से. सुयश प्लीज चेक इट. ओके, वेरी नाइस. अक्षय आप भी, अक्षय नहीं, अक्षय करेक्ट है. राशि एक बार चेक करो. चलिए वनश्री सही है.
आदित्य थोड़ा सा चेक करो, माइनस प्लस का मिस्टेक इज कॉमन,